और वो कब से लाइफ पे आ रहा है? सर ये तो 9:25 से सर लाइव। अच्छा, नहीं नहीं, टाइम नहीं, एज इन कितने दिन से लाइफ पे आ रहे हो आप मेरे? मैं सर 25 सितंबर से सर। अच्छा 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 अच्छा, ऑलराइट, ओके ओके ओके, गुड. So today you did what, 4,030 rupees on a contract. Essentially, this is your highest profit per lot जी so far. जी Yeah. सर। जी Okay, okay. And कब से ट्रेडिंग चालू की आपने? सर मैं लर्निंग तो फरवरी से ले रहा हूँ, पर सर अभी आपके गो चार्टिंग की मदद से बहुत हेल्प मिली सर मेरे को। ओके ओके. ये लोकेश ही है ना, लोकेश यादव? हाँ, नहीं मैं लोकेश नहीं सर, दूसरा ये अभिषेक? दूसरे। फिर कौन है? नहीं सर, सर मैं रंजीत बोल रहा हूँ सर, रंजीत सिंह अच्छा राणा। अच्छा अच्छा अच्छा. हाँ, जी सर। तुझे तो देखा है मैंने. जी सर। ओके ओके ओके. सो क्वेश्चंस हो गए अभी लोगों को, तो वो ले लेते हैं. एक बार मैं सिर्फ रिव्यू ये कर देता हूँ अभी तक क्या हुआ है बेसिकली. सो ये हमारे लेवल्स थे. वी वी टुक अ लॉन्ग हियर. लॉन्ग फेल हो गया यहाँ. ठीक है. फर्स्ट लॉन्ग वाज फेल्ड हियर, बट वी वेटेड बिकॉज वैल्यू एरिया लो, or developing value area low was not broken at all. On the up move, this was the first entry signal, but the risk reward was not so great essentially. So almost 30-40 points or 10 rupees in bank nifty is nothing. So we waited. There was a good breakout of this yellow level, which is last week's value area, right? We had a good pullback on 5-minute time frame, and this became our entry point essentially for a plus setup. This is also a good entry point around 38,780. Sorry, 38,800 levels, right? Because we are above developing value area, right? And we were also in this range, orange range. So यहाँ से जब low hold हुआ, value area low of this orange range, there's a node here, high volume node here. Then this becomes an entry point, B minus setup, B plus setup. Going scaling in with B minus, B plus, and A plus setups. All right. अभी कॉन्ट्रैक्ट पे अगर आपने यहाँ एंट्री ली होगी तो अराउंड 100 पॉइंट्स पर कॉन्ट्रैक्ट मिले. यहाँ एंट्री ली होगी तो अराउंड 50 पॉइंट्स मिल ही गए होंगे. आई नीड टू चेक. एक मिनट में मेरा देख लेता हूँ आफ्टर दिस. We opened gap down in relation to previous value areas, to previous week's value area as well. Then we had a sustained up move. It failed to continue. We did bounce once from the VWAP, and that was our entry point here essentially, which didn't hold for much inside this value area because price acceptance हुआ नहीं था. Price acceptance is you have to the price should considerably move inside the value area, right? After a pullback, it didn't move that much up, and that's why we had a failed. Oh, sorry. ये कहाँ था? We'll figure that out, right? We subsequently had a good down move with not much on the cumulative deltas. The delta sell delta was not as strong as the buy delta, and then we sustained for some time in the developing value area, and subsequently started moving up with strong deltas. Now this down move doesn't look weak at all. There's very less selling happening, and there are sustained buying candles that we see, strong buying candles. I do believe we will have a continued rally towards upside now from here till 39.40 as a first target.
and then this blue line as your target 2. Let's see. Questions now. Let's take some questions. Angad, are you using default VWAP standard deviation setting or custom? I am using custom. These are the settings. 0.5 and 1.5. Or standard, yeah, perfect. Would be helpful if you could show the executions as well. No, Trizzy, I cannot show the executions. I can only tell certain things. I'm not a SEBI registered person, and I represent a company. We have a lot to lose essentially by showing our size and entries and exits. We cannot do that officially. And if I do that, then I cannot put up the videos online. But I do take trades on the side. I have. It doesn't matter if I do or not. You can just look at my entries and exits. I know without money, following somebody's conviction is dangerous. But I'm not here to sell you a signal service. Neither am I here to sell you a course. So it becomes considerably less relevant to show you my entries and exits. आप अगर किसी ट्रेनर के पास जाते हो और या लाइव कॉल सर्विस के पास जाते हो तो जरूर उनकी एंट्रीज एग्जिट्स देखनी चाहिए, हिस्ट्री देखनी चाहिए. For me, I'm more of a guy who would not want to come online and do this. This is not my job. I am only doing this because बहुत सारे नए customers आ गए मार्केट में, option buyers आ गए, and they are losing a lot of money in directional naked option buying, which is the most riskiest of the place. So क्या होता है कि आते हैं लोग प्लेटफॉर्म यूज करने, अपना खुद का अकाउंट ब्लो अप करते हैं, और फिर it affects our bottom line as well, right? If you guys are not profitable, then there is no point in you will not be with the platform for long, essentially. So my job is to actually make you profitable by giving you the understanding behind the markets and not giving you entries, exits at all. Today I'm actually trading on a different terminal and not this one. Otherwise, usually you do get audio cues as to when I buy and sell. If anybody is a regular, they know that when I say something, I usually take a entry and there is a audio cue to it. Usually the pop-up, pop-out sound of Zerodha. Honestly, even if I was SEBI registered, I wouldn't open my terminal and showcase my entire life on YouTube. Just doesn't make sense for me. If you don't like my conviction, you are happy to build your own and trade according to yours. मतलब मैं कुछ बेचने नहीं आया हूँ, मुझे कुछ प्रूव करने की जरूरत नहीं है. आप मेरे कन्विक्शन में ही प्रूफ है मेरा, देख लो. सर लाइव क्लास से बहुत हेल्प मिलती है सर. हाँ, कन्विक्शन बिल्ड करने में सबसे बेस्ट है ये फॉर्मेट इन माय ओपिनियन. और अभी यहाँ सेलिंग 198 की हुई इस ब्लू लाइन पे, राइट, और वी हैव सस्टेन्ड. ओके, ये पुल बैक था, सस्टेन हुआ है. जैसे मैंने बोला, बाइंग इधर 724 कॉन्ट्रैक्ट हिट हुए ऊपर के साइड. सो ये T1 के नजदीक आते हैं तो क्या समझ में आ रहा है हमें, ये T1 क्या है, वीवॉप है लास्ट वीक का, राइट. यहाँ बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट्स लिमिट सेलर्स बैठे हुए हैं, तो लिक्विडिटी बहुत है इधर बनी हुई, तो वो हिट होते जाएगी. जी सर. और अगर इंट्राडे में स्ट्रेंथ नहीं रहेगा बायर्स में, तो रिवर्स हो जाएगा मार्केट यहाँ से. सो ये फर्स्ट साइन है कि इस कैंडल के बाद जो होता है, मतलब एग्जिट कर लो. अभी जो भी एग्जिट्स मत करो, सॉरी, look for an exit signal, I would say. If it doesn't come, then don't take it. Okay, this is an exit signal जहाँ 720 कॉन्ट्रैक्ट हिट हो जाते हैं और प्राइस उसके ऊपर नहीं जा रही है अभी. बट वी विल नॉट एग्जिट हियर बिकॉज अपसाइड इम्बैलेंस है
और ये लेवल पे नहीं हुआ है, अपने एरिया में हुआ है नजदीक। जी थोड़ा और एक बार हिट ट्राई करेगा, मतलब ये लेवल टेस्ट होना ही होना है। सो विल सी व्हाट हैपेंस हियर। ये पूरा जो अपमूव आ गया था ना, वो सही इस सेलर ने खा लिया है। ये जो बाउंस है, हाँ। तो अभी देखेंगे प्राइस अगर इस एरिया के अबाव अच्छी खासी एक्सेप्ट हो गई है लास्ट वीक के वैल्यू एरिया में। सो मुझे लगता है आज अगर कंटिन्यूड अगर इस वीक का देखना है तो ओवरऑल मुझे बेरिश सेंटिमेंट था मेरा, और अभी भी है। तो ये इस रेंज में वैल्यू बनाएगा 3940 से लेके 38,830। ठीक है, इसको हम थोड़ा राउंड नंबर कर देते हैं। इसमें रेंज बनाएगा ये वीक में, ऐसा मेरा प्रेडिक्शन है। प्रेडिक्शन का कुछ फायदा नहीं है मार्केट में, सो थोड़ा टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट। जस्ट लेटिंग यू नो कि अगर कुछ चेंज होता है कन्विक्शन ऑन द पॉजिटिव साइड तो फिर वैल्यू यहाँ बनेगी ऊपर के साइड, और फिर यहाँ से ब्रेकआउट देगी लास्ट वीक के वैल्यू एरिया से, और कंटिन्यूस आगे जाएंगे। फॉर नाउ लेट्स सी। अरे कोई बात नहीं था। So, Gotcha, thanks. Question was more from the perspective many people like me are good with analysis but lack with the execution. Acha, 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 acha. Sorry, Drizzy. Then though I went in a different tangent. Angad, could you please explain the logic behind using VWAP instead of V123 and you do use this custom weekly? Logic है इसके बारे पीछे. You can go check out normal distribution Z-scores. If you understand the mathematics behind it, I will show you. Normal distribution VWAP Z-scores. Z numbers, sorry. These are confidence numbers. Standard deviation is actually 1, but that's 68% basically. I use 0.5 because it's back tested and I want a little bit earlier entry, क्योंकि 68% के बाहर जाने के बाद मुझे एंट्री नहीं लेनी है. There's no point. Yeah. There is a deep discussion about it. A lot of people use 1, 1.5 and 2. Okay. इंट्राडे के लिए मैंने जो टेस्टिंग की है इस सेटिंग्स पे 0.5, 1 और 1.5 बेटर है. इट गिव्स यू मोर एक्यूरेसी बट ऑल्सो कम्स विथ लिटिल बिट ऑफ टाइट एंट्रीज एंड एग्जिट्स. अगर आपको और कम रिस्क लेनी है तो आप इजीली VWAP के सेटिंग्स 1, 1.5 और 2 रख सकते हो. 1, 2, 3 रखने में मतलब ही नहीं. सर स्क्रीन नहीं आ रहा है. स्क्रीन नहीं आ रहा है. ओह ओके 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 ग्रेट. अंगद, could you please explain लॉजिक? इसका एक्चुअली बता सकता हूँ मैं, थोड़ा बाद में बताता हूँ आपको. या आप स्टैंडर्ड डिविएशंस और जी स्कोर के रिलेशन सर्च कीजिए. जी नंबर्स आपको समझ जाएगा. कॉन्फिडेंस स्कोर बोलते हैं इसको. जितना कम रोकोगे उतना लेस कॉन्फिडेंस होगा, बट उतना ज्यादा रिवॉर्ड. 0.5, 1, 1.5 has been back tested by me on almost 2017, 18, 19, 20, almost 4-5 years के डेटा पे. वीक डाउन मूव, डोंट वरी अबाउट दिस डाउन मूव एट ऑल. कुछ भी नहीं कर पा रहे सेलर्स. 2 मिनट के अंदर इसको खा जाएंगे अपन. T1 आ जाएगा अपना. T1 पे देखते क्या होता है. सर स्क्रीन शो नहीं हो रही है. अरे नहीं हो रही है, मुझे तो दिख रही है. चलो एक बार हो रही है.
स्क्रीन दिख रही है। ओके राइट, और कुछ था ना? हाँ हाँ, सो ड्रिजी फ्रॉम अ पर्सपेक्टिव ऑफ लाइक, अच्छा so entry or exits, usually I scale in my entries and scale out my exits, and that's why we use VWAPs. So if you go on 1 minute, here is a way to scale in from B minus. So this was one rotation, we held, we went above the VWAP, we held first entry, second entry, third entry, exit, third deviation के बाद exit, exit, pull back, entry, pull back. This is not an entry. This pullback entry, this pullback entry. Exits around here, 1, 2, 3. जैसे third deviation के बाहर जाता है. Now this becomes a re-entry, but it's still above the third deviation. So you cannot scale in here. So scale in अगर करना है, अरे यार, did I just move this? T1, no. किसी को पता है ब्लू लाइन कहाँ थी? I just moved it by mistake, but शायद यही थी कहीं. ये देखो, this is the final move. You can exit here. Sorry guys. Yeah. Yeah. Exit. तेरा वो सेकंड कॉन्ट्रैक्ट है ना? 38,919. हाँ, थैंक यू. जी सर, एग्जिट कर लिया सर. गुड. वो कितने को किया एग्जिट तूने? सर 165, 69. अच्छा, so almost 169 into 25, so 4,225 प्रॉफिट. और पहले का 35. नो सर, दो लॉट पे तूने 7-8. 39,000 था सर पहले. ओके. जी. सो टोटल दो लॉट पे कितना बनाया तूने? टोटल 9,600. गुड. सो दो लॉट 9,600 बनाया, और लॉट इन द मनी लिए थे ना? ऑन द मनी लिए थे? इन द मनी सर. ग्रेट. आई एम जस्ट आस्क, मुझे ये पता है, आई एम जस्ट आस्किंग बिकॉज इससे थोड़ा सा जी सर, कन्विंसिंग में थे सर. मोटिव बनता है लोगों का. जी सर. हाँ, तो तूने शायद यहाँ एंट्री ली थी. जी सर. 38,700 का कॉन्ट्रैक्ट लिया रहेगा तूने. जी सर. 38, राइट. ठीक है. सस्टेन्ड अप मूव आ रहा है, बट मूव तो अच्छा अच्छा खासा आ रहा है, और ये एक्चुअली सेलिंग हो रही है इधर. बट लेट्स मूव ऑन टू 5 मिनट टाइम ना. कितना, 2 मिनट बाकी है इसको. ठीक है, ठीक है. बाइंग इम्बैलेंस क्रिएट हुआ है गाइस, but at a level, at an exit level, not an entry level. All right. So this राइट signals सर. two things. ये कंटिन्यूएशन भी हो सकता है, नहीं तो
एक्सेस मतलब फोमो लेट एंट्रीज वाले लोग हैं सारे। सो रिटेलर्स भी हो सकते हैं, नहीं तो ट्रेंड कंटिन्यूएशन भी हो सकता है। हमें कुछ उससे मतलब नहीं है, हमने एग्जिट ले लिया है। हमें अपना मूव मिल गया यहाँ से, ये वाला था, ये वाला था, ये ब्लू लाइन थोड़ा सा ये था अपना रेफरेंस था। और एक वी कैन डेफिनेटली गो हियर, मूव बैक टू दिस पर्पल लाइन, सस्टेन एंड देन अगेन 3903 से 100 पॉइंट ऊपर आप ले सकते हो। फिलहाल के लिए सेलिंग आने दो मार्केट में, थोड़ा सा बैलेंस में जाने दो। इधर साइडवेज जा सकता है मार्केट, जैसे मैंने बोला अभी। सर जी निफ्टी में क्या कर रहे हैं? 5 लॉट है, 5000 प्रॉफिट दिखाई दे रहा है 20 पॉइंट का। ले लो, चलो ले लो सारा। मेरा निफ्टी पे ध्यान नहीं है, बट अगर प्रॉफिट में हो तो ले लो, ले क्योंकि लो बैंक सर। निफ्टी अभी रिवर्सल दे रहा है। हाँ, यहाँ पे बायर्स एक्टिव हुए थे सर। 6000 हो गया सर। चलो थैंक यू। हाँ, निफ्टी में बायर्स एक्टिव हुए थे सर अभी थोड़े टाइम पहले। चलो मैं निफ्टी देख लेता हूँ। चलो आपको मैं हुए थे सर अभी। हाँ, अपनी रेफरेंस लाइन पे है एक, ये बन रहा है। एक सेकंड में, लेट मी जस्ट गो बैक। निफ्टी में तो बैंक निफ्टी में एग्जिट्स मिल गए, कोई भी नहीं रहेगा तो मैं शिफ्ट हो रहा हूँ निफ्टी पे, क्योंकि मैं निफ्टी ट्रेड नहीं कर रहा हूँ अभी। हाँ, अपने क्या लेवल्स थे इधर? अच्छा सुपर मूव आया था सर अपना, व्यू ऐप के पास आया था फर्स्ट व्यू अच्छा, ऐप पे, वहां पे एंट्री लिया मैंने जो 11:25 पे। हाँ ये इस पे लिया ना एंट्री आपने? जी मैं बोलता हूँ कॉस्ट सेकंड व्यू ऐप पे टच किया था, बराबर, ये वाला एंट्री था आपका। क्योंकि 17,000 का एग्रेसिव बाइंग आया था अरे 17 सॉरी, के मैं का। क्या देख रहा हूँ। और अपना ओ आई सेंस वहां भी शॉर्ट कवरिंग थी क्या यार? राइट, अपना मूव निफ्टी में तो अच्छा बन रहा है। 7,000 हो गया सर, बुक कर ले रहा हूँ। हाँ, अभी बुक 250 कर के लो, लिए। अभी बुक कर लो। अपनी एंट्री कब की बन गई थी यहाँ? जी जी हाँ, आपने जो अपना जो वैल्यू एरिया नहीं क्या, राइट वैल्यू एरिया के जो सेकंड आपका व्यू ऐप नहीं क्या? राइट हाँ, तो आपका 11:25 पे एंट्री बनी, सेकंड व्यू ऐप पे आया था राइट। और 17,000 का ये था एग्रेसिव बाइंग ओ, ओके 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 ओके, हाँ इम्बैलेंस में। बराबर। हाँ, तो वो लेवल देख के मैंने एंट्री लिया था, और किसी ने तो मैसेज भी डाला था कि निफ्टी में बाइंग आई है बोलकर अच्छा अच्छा, अपनी। तो वहां पर एंट्री लिया था, समझो अप्रोक्स 250 पे लिया था। बराबर ये लिया था 250 पे 16,900 का 5 लॉट, बराबर, परफेक्ट। 275 पे निकाल दिया सर। बोलता है एग्जैक्ट सुपर है सर, काम बहुत बढ़िया कर सर। बट आप निफ्टी में भी थोड़ा दिया करो हम, क्योंकि हम सिर्फ निफ्टी में करते हैं। ठीक है, हम निफ्टी में भी करेंगे, निफ्टी जी में सर, भी साइड को अंगद रखेंगे। सर, थैंक यू सो अंगद मच सर, सर, आपका सपोर्ट बहुत ही बढ़िया है। ओके, थैंक यस, यू। थैंक यू गाइस। हाँ, तो ये डाटा बहुत अच्छा काम करता है, बहुत सर अच्छा इतना काम। सुपर करता है सर, पूरा ओपन कर देता है। हाँ, पोस्टमार्टम होता है ना कैंडल का, बराबर और वो आपका जो है व्यू ऐप, बराबर, माइंड ब्लोइंग सर, माइंड ब्लोइंग। अंगद सर। या सर मैंने अभी सर ने बोला ना 11:25, बराबर मैंने 11:22 पे सर एंट्री ली थी। तब मैंने आपके चैट बॉक्स में डाला भी था कि निफ्टी में बायर्स एक्टिव हो रहे हैं। जी बराबर, जी, आपने आपने जब डाला ना तभी मैंने लिया, बेस्ट सर बेस्ट। उस चेक किया। मैंने डालते मैंने अपना पोजीशन बनाने के बाद आज चैट बॉक्स में डाला कि निफ्टी में बायर्स एक्टिव हो गए सर। सो कुछ हेल्प हुआ वीवैप और लेवल्स के मेरे? सर बिल्कुल हुआ सर, मेरा भी प्रॉफिट बताऊं सर 1000%। निफ्टी में। ग्रेट 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 सर गाइस, उन्होंने डालने के बाद मैंने तुरंत चेक किया। बेस्ट। बोल तो अरे ऐसा हाँ, नहीं कि तुक्केबाजी उन्होंने डाला बोल के मैंने बाय किया, वो नहीं किया मैंने। उन्होंने डालने के बाद मैंने चेक किया, 17 के का ये था, और आपने व्यू ऐप के लेवल के पास आ रहा है। मैं और आपका ओ आई ये नहीं क्या प्राइस चार्ट, राइट ओ आई ओआई प्रोफाइल, प्रोफाइल में ओआई एग्रेसिव प्रोफाइल। राइट, ये हो गया था, चेंजिंग ओपन इंटरेस्ट हो गया था पुट का। तो वो ओके देखते हुए मैंने ट्रेड लिया।
तो सुपर है सर, बहुत ही बढ़िया काम करते हैं। पर निफ्टी को थोड़ा सपोर्ट दीजिए सर, क्योंकि हम क्या करते हैं निफ्टी पे करेंगे, हर रोज करेंगे, निफ्टी पे हर रोज करेंगे, कोई अंगद issue सर, अंगद जी सर, जी। सर आज मेरा बैंक निफ्टी में 9,600 प्रॉफिट था सर। वाह, और क्रेजी, और निफ्टी निफ्टी में 4,300 सर। एब्सोल्युटली। और कितने लॉट पे कर रहे हो आप? सर 2 लॉट, मैं ट्रेड हमेशा 2 लॉट वाह में करता हूँ, ज्यादा नहीं करता। वाह, अच्छा लगता है ना बेसिकली। व्हेन 2 लॉट पे अगर आप इतना कमा रहे हो, दिन का 10,000 रुपया, बहुत मेहनत लगती है कमाने को एक। सर मेरा ड्रीम था कि 10,000 पर डे कमाऊं सर, इसमें क्या दिक्कत है सर? एग्जैक्टली एग्जैक्टली। सर दिन दिस का इज अगर ये सॉफ्टवेयर कह इज रहा ना। वेरी गुड। हेलो। हो गया है आपके सबका मूव, मैं बोल रहा हूँ अभी, क्योंकि अगर मार्केट अभी थोड़ा सा साइड मूव जाने वाला है। अगर जिसने प्रॉफिट कमा लिया है 10-10 हजार दिन का, जी एक सर। पर्सपेक्टिव देता हूँ आपको। 10,000 रुपए कमाने के लिए एक स्मॉल बिजनेस को, लेट्स से फॉर एग्जांपल ग्रोसरी शॉप को, एटलीस्ट एटलीस्ट आई वुड से 1 लाख, 1-1.5 लाख का दिन का धंधा करना पड़ता है पूरे दिन बिल्कुल सर, मैं फादर की जॉब है सर, मेरे पापा का बिजनेस है, मतलब शॉप का, उसमें पता है सर कितना हार्डवर्क लगता है। राइट। 7 to 8% भी मिलता नहीं है ओवरऑल सब नहीं मिलता। वेजेस देके। मेरे भी पापा का ग्रोसरी शॉप था, तो मैं बोल सकता हूँ कि यू इफ यू आर मेकिंग 10,000 रुपीज इन अ डे, दुकान बंद कर दो, पूरे दिन का मेहनत फैमिली के साथ जाके एंजॉय करो। क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि मैंने ये किया हुआ है। आप ओवर ट्रेडिंग में लगते हो और सारा पैसा मार्केट में दे देते हो पहले मैं वापस। ये करता था सर, अभी मैं मेरे ट्रेडिंग जर्नी 1 मंथ हुआ सर, पर स्टार्टिंग के 10 डेज मैंने ओवर ट्रेडिंग में ही निकाला है। राइट। अरे मैंने तो बहुत दिन निकाले, तूने 10 दिन निकाले रहेंगे। मैंने ओवर ट्रेडिंग, ज्यादा कैपिटल सर था मेरे पास, इसलिए मैं आपकी ओवर। आपकी गाइडेंस मिल गई ना सर, इस वजह से रुक गया सर मैं गलत रास्ते जाने से। बेस्ट बेस्ट बेस्ट। ग्रेट है। आई होप कि ऐसे हेल्प होते जाए एवरीडे आपको, बाकी तो तो मैं ये कह रहा था, ये जैसे 2 विंडो खुली हुई है, ये कैसे खुलती हैं इसमें? फिर से पूछिए एक बार क्वेश्चन, सॉरी आई डिडंट ये हियर जो यू। 2 विंडो मल्टी विंडो खोली हुई है ना। हाँ मैं बताता हूँ। ये अगर मेरा पॉइंटर दिख रहा है आपको, ठीक है। लेफ्ट हैंड कॉर्नर में, यहाँ 4 लेआउट्स है। ये 2 रो चार्ट है। दिस इज अ 3 रो, सॉरी दिस इज 2 रो चार्ट। ऊपर नीचे अभी बहुत लाइन है तो समझ में नहीं आ रहा है। ये साइड बाय साइड वाला है, ये 4 वाला है। और अगर मोर लेआउट्स में जाओगे तो आपको ये थोड़े से ऐसे वाले लेआउट्स मिलेंगे, जो क्या कर सकते हो आप बेसिकली। आप यहाँ लगा सकते हो पूरा डेल्टा लगा सकते हो नीचे, और ऊपर 5 मिनट, 15 मिनट या 1 मिनट, 5 मिनट के 2 चार्ट्स लगा सकते हो। तो यूजुअली ये वाला सेटअप मैं यूज करता हूँ, बट क्या हो जाता है नए, मैं सिर्फ क्या सिखा रहा हूँ कि एक विंडो पे भी ट्रेड कर सकते हो आप। मैं कुछ नहीं चेंज, सर, ये आया आता कैसे है? मतलब यहाँ पे मेरे पास ये अगर क्लिक करते हो ना नीचे, 2 रो चार्ट आएगा, ये वाला क्लिक करते हो, ठीक है। दोनों में बैंक निफ्टी खुलेगा। अभी आपको एक इसमें निफ्टी खुलना है, तो उस विंडो में यहाँ जाके क्लिक पे। कीजिए। क्लिक करने के ठीक है बाद सर। सर एक बार वो थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम हो गया था नेटवर्क में। क्या हुआ, क्या हुआ? वो नेटवर्क में कुछ प्रॉब्लम हो गया था, तो एक बार फिर से बता देंगे? हाँ ठीक है ठीक है। लेफ्ट हैंड कॉर्नर में नीचे ये सारे लेआउट ऑप्शंस है। फुल चार्ट, 2 रो चार्ट, 2 कॉलम चार्ट, 4 चार्ट। सर और ये अगर मेरे में ये फुल स्क्रीन ही आ रहा है F11 करके, उसके अलावा कोई नहीं आ रहा। आप आपके ब्राउजर में जो ऊपर वाली लिंक है ना, वो कॉपी कीजिए और मुझे भेजिए चैट बॉक्स में। ये देखो, अगर आपके पास 2-3 लॉट और होते ना, तो मैं ट्रेल करने लगा था बाकी के लॉट पे, और ये अपनी बन जाती थी प्रॉपर रैली फ्रॉम हियर। 38,850 से लेके 200 पॉइंट की रैली मिल जाती थी आपको। कोई नहीं सर, आज को हो गया। हाँ बट अभी हो गया, मतलब ये मत देखते बैठो कि मैं और रुकता तो मैं इतना कमाता, फिर कैलकुलेट करते बैठो। हाथ में 10,000 रुपए है,
अपने परिवार के पास जाओ, एंजॉय करो टाइम। आपने आपका काम कर दिया है आज पूरे दिन का। जी सर। वो निफ्टी ने जो बहुत ही सुपर मूव दिया सर जी आपके लेवल से। बेस्ट बेस्ट और टाइम पे तुमने बताया तो मैंने लेवल्स निकाल दिए, नहीं तो मेरा ध्यान नहीं था निफ्टी पे, टू बी ऑनेस्ट। तो आपके लेवल पे आ चुका था, बोल तो परफेक्ट था वो। राइट, अभी तो ये एंटर कर दिया निफ्टी पे, आपको एक्चुअली अपसाइड मिलेगा। और 275 पे हम एग्जिट हो गए 5 लाख से, अभी राइट, 300 पे चला गया वो। नहीं ठीक है ठीक है, हाँ बढ़िया है, कोई बहुत प्रॉब्लम नहीं। लेवल बढ़िया थी सर। हाँ, इसमें कुछ इतना ये नहीं है, अभी अप मूव कंटिन्यू भी होते जाएगा इसका, लग रहा है मेरे को। हाँ इसलिए। ठीक है, तो ये थोड़ा सा पुल बैक आने दो अपने थर्ड डिविएशन पे या सेकंड डिविएशन पे री एंट्री ले सकते हो। ठीक है, ओके सर। डेल ये सर निफ्टी में बायर्स और डेल्टा दोनों सर हाईली पॉजिटिव बता रहा सर। राइट राइट राइट, सो कंटिन्यू रह सकते हो एक्चुअली मूव में अगर कोई है तो। अदरवाइज मैंने भेजा हुआ है, एक बार आप चेक करें। एक मिनट, लिंक मेरे को किसी ने भेजा है क्या? नहीं सर, निफ्टी में लर्न पर कैसे आइडेंटिफाई किया कि बाइंग आ रही है, प्लीज एक्सप्लेन सर। 1125 पे बाइंग आ रही है, कैसे दिखाते हैं, देखो अभी। गो चैटिंग वाले ग्रुप में ही भेजा हुआ है। हाँ अच्छा, ये वाले चैट चैट बॉक्स में भेजो ना। हाँ ये देखो, बाइंग नीचे की तरफ सेलिंग हुई है 456 लॉट की, बट प्राइस ऑपोजिट साइड पे मूव हुई है। और उसके इमीडिएटली नेक्स्ट कैंडल पे बाइंग इम्बैलेंस क्रिएट हुआ है 4 बॉक्सेस का। 1K कॉन्ट्रैक्ट का इम्बैलेंस है ये, 1K 823 153, राइट। तो ये सिग्नल है आपका, डीवीए के अबाव सस्टेन हो रहा है। यहीं पर एंट्री ली थी सर हाँ, निफ्टी में। ये बेस्ट एंट्री पॉइंट था। तो जिसने ली ये एंट्री 17102 पे, उसको तो अच्छी खासी रैली मिली होगी। और अभी जी बैंक सर। निफ्टी थोड़ा सा एब्जॉर्ब कर रहा है ऊपर के साइड अपने ब्लू लेवल के पास, 658 कॉन्ट्रैक्ट से 2 है। तो समझ लो ये रिवर्सल आएगा यहाँ से और कंसोलिडेशन चालू हो जाएगा। ठीक है, सो निफ्टी भी थोड़ा मार खाएगा उसकी वजह से। तो निफ्टी, बैंक निफ्टी अगर थोड़ा सा भी बेरिश हो गया ना, तो निफ्टी न्यूट्रल हो जाएगा और इस ब्लू लाइन पे आके कंसोलिडेट होके फिर आगे का अप मूव देगा। अराउंड 100 पॉइंट का अप मूव आज भी या कल में आ सकता है। क्योंकि क्या हुआ है अभी, द मार्केट हैज टोल्ड अस कि हमने जो लास्ट वीक में वैल्यू एरिया बनाई थी, ये ग्रे एरिया जो है रेंज, उसके अंदर हम जाना चाहते हैं, ऐसे डिसाइड हो गया। अभी उसमें कितने देर हम सस्टेन करते हैं उतनी उसकी प्रोबेबिलिटी बढ़ते जाएगी। सो वी शुड मॉनिटर कल के लिए। अगर स्विंग प्लेयर्स हो तो आप डेफिनेटली एग्जिट मत करो। दिस लुक्स थोड़ा कन्विक्शन बेरिश हो गया था लास्ट वीक में, एंड ऑफ द लास्ट वीक, राइट, जो अभी न्यूट्रल करा दिया है। वी आर स्टिल नॉट इन लॉन्ग्स, राइट। अगर कोई लॉन्ग्स में है इंट्राडे में, सॉरी स्विंग में, 2-3 दिन के स्विंग में, तो थोड़ा भी अभी देयर इज स्टिल थोड़े लेवल्स और पार करने पड़ेंगे, फिर हम देखेंगे। क्योंकि अभी ये लेवल इंपॉर्टेंट हो गई है 39,250 की। इसके अबाव अगर प्राइस जाती है तो सिग्नल मिलता है कि वैल्यू एरिया भी इसके अबाव बनना चाहती है। इसके अगर वीवैप के इधर सस्टेन करती है इसके ऊपर, तो ये ब्रेक होने के चांसेस है। अगर नीचे सस्टेन करती है तो इधर एक कंसोलिडेशन होगा 3940 से लेके 38,830 तक, और फिर नीचे के साइड ब्रेकडाउन दिया तो बेस्ट है, फिर एक अच्छा खासा डाउन मूव आएगा अराउंड 38 to 80 तक, राइट, थर्ड डिविएशन तक। वो मैंने लिंक भेजा हुआ है, एक बार चेक करेंगे ग्रुप में। हाँ हाँ हाँ, आपका लिंक इधर नहीं है ग्रुप पे क्या, किधर? ठीक है, लोकेश, लोकेश हाँ सर। आप ऑप्शंस डेस्क पे देख रहे हो। हम्म। आपको देखना है
ये देखो ये वाला टर्मिनल। सो आप ऑप्शंस डेस्क करके हमारा दूसरा प्रोडक्ट यूज कर रहे हो, आपको ये इस लेवल पे देखना है। सॉरी लेवल क्या बोल रहा हूँ, आप नॉर्मल इसकी, हाँ चार्टिंग एप्लीकेशन पे जाइए। अगर आपको दिखा देता हूँ मैं, अच्छा। गो चार्टिंग पे जाओ और ये चार्ट है, इक्विटी में जाओ, इधर ये है तो सर्च करो यहाँ से बैंक में, ठीक है। ये सर्च करने के बाद आप टर्मिनल करके आएगा ऊपर इसमें ऑप्शन कहाँ पे डेस्क। सर, कहाँ पे? देखो नॉर्मल सर्च करो, होम पेज पे हाँ जाओ। ठीक है। हाँ फिर उसके बाद ये कुछ दिखाई देगा, उसमें ये सारे ऑप्शंस ओपन हो जाएंगे, ठीक है। ठीक है। गिव इट तो टू, सर ये ऑप्शन डेस्क वाला वो खुलेगा या ये वाला खुलेगा फिर? वो वाला खुलेगा ना, ये इक्विटी वाला? हाँ ऑप्शंस डेस्क के लिए आपको ऑप्शंस डेस्क का एक ऑप्शन है इधर देखो। मैं इसी को यूज करता हूँ रेगुलर। हाँ नहीं, अभी ऑप्शंस डेस्क के थोड़े जो अपने मेन मेन फीचर्स है वो इसमें आ गए, मेन मतलब ओआई आगे। प्रोफाइल के लिए। ठीक है। तो, हाँ सो आप इमेज देख सकते हो। मैं बंद कर देता हूँ इसको और शेयर टैब। तो ऑप्शन डेस्क का सारा मतलब जो था वो सब यहीं पे आ गया है सारा इक्विटी में? है जो यूज कर रहे हैं ना हाँ सेटअप पे, जो हाँ ओआई प्रोफाइल लेयर हाँ, ये ये आ गया है बिल्कुल। स्टार्टिंग में। सो वो शिफ्ट कर दिया है फीचर दोनों जगह। तो अभी ये सेटअप पूरा हो गया आपका, अभी कुछ जरूरत नहीं है, मतलब इससे आगे दिन के 2-3 लॉट पे आप अगर 10,000 कमा सकते हो तो ज्यादा क्यों, और नया क्या हम्म। ढूंढना है आपको। यू नहीं जस्ट, नहीं, बस ये कंफर्म कर रहा था, मतलब ऑप्शन डेस्क की जगह वो खोल सकते हैं मतलब इक्विटी। मैं उसको इसलिए नहीं खोलता था कि उसमें सारे फीचर्स नहीं थे। नहीं नहीं बराबर, अभी तो है सब। अभी यहाँ देखो 1.3 के कॉन्ट्रैक्ट हिट हुए ऊपर की तरफ। एक बार मैं ये चेक कर लेता हूँ ऑर्डर फ्लो। हाँ 25 लॉट का है इधर। ये निफ्टी ऑर्डर फ्लो 50 लॉट बराबर। सो दिस, ये रिवर्सल कैंडल बन सकती है, याद रखना, ठीक है। ये रेंज बाउंड हो गया है तो 1.3 के इधर लॉट्स अटक गए अपने परफेक्टली ब्लू लेवल पे, और उसकी वजह से ये आ रहा है डाउन मूव। सर तो हम्म सर ओआई प्रोफाइल पे सर क्या कॉल्स राइटर्स बढ़े हुए हैं सर, वहां से डाउन मूव आ सकता है बैंक निफ्टी में। राइट राइट एब्सोल्युटली, बट मुझे लगता है उनका भी लेट्स सी वहां अगर बैठे तो बेस्ट है, क्योंकि अपने लेवल पे परफेक्टली वो कन्फ्लुएंस दे रहा है। सो हमने एग्जिट ले लिया इधर सर, बराबर। और जी सर। मैं रेगुलरली बॉटम्स और टॉप्स नहीं निकाल रहा हूँ, बट एटलीस्ट मेरा हिट रेट अगर आप देख रहे हो 1-2 वीक से, जी कहीं ना कहीं एक दिन जा रहा है मेरा ऐसा जहाँ ऑप्शन बाइंग के लिए दिन ही नहीं बना हो, उसमें ही मेरा जी सर। बैड डे हुआ है अभी तक। अगर सर आप इसमें आपकी एक्यूरेसी, मैं जब से ज्वाइन कर रहा हूँ ना सर 25 सितंबर से, राइट 95% सर ऑलमोस्ट निकल ही रही है सर, कुछ भी कर लो आप। एग्जैक्टली। 95 अबाउट 98 सर, मैंने टेस्ट करा है सर बिल्कुल। अभी नेक्स्ट स्टेप तेरा क्या है कि तूने मेरे बिना ये कन्विक्शन बनाना है और फिर मेरे साथ आके कोरोबरेट करना है। मतलब क्या कि यार मेरा ये कन्विक्शन है, आपको क्या लगता है। जी मैं सर। मैंने सर आज आज मैं डिसाइड करके आया था सर अच्छा, कि आज अंगद सर बताएंगे, उससे पहले मेरे को ट्रेड लेना है। बेस्ट बेस्ट बेस्ट, तुझे और आज समझ मैंने में आ सका। वी वेब के पास में सर ट्रेड भी इनिशिएट कर लिया था सर। ग्रेट। थोड़ी एंट्री रॉन्ग हो गई है तेरी इधर, बता देता जी हूँ मैं। सर। जी बट सर। वो सेटअप सही, मतलब देख डेल्टा पॉजिटिव इसमें जा ही रहा था तभी, जी सर। क्यूमुलेटिव वॉल्यूम डेल्टा। यहाँ तेरी एंट्री है वीवॉक पे जी आई गेस। जी सर। जी सर। तो एब्जॉर्प्शन थोड़ी पे सी तो ठीक है, इट वाज नॉट अ बैड एंट्री, आई वुड से बी माइनस, जी बी सर। बी माइनस, बी प्लस, ए प्लस। जी सर। और ये देखो परफेक्टली इस पर्पल लाइन से अपना T1 जो है, मतलब अभी क्या हुआ है, एक्सेप्ट हो गया प्राइस अबाउ लास्ट वीक्स वैल्यू एरिया। सो अगर इस पे एंट्री लेते हो आप कंटिन्यूएशन पे, तो आपको ये लास्ट वीक वैल्यू एरिया है आ जाएगा। सो ये
इजी प्ले था अपने लिए आज। एसेंशियली ये दो लेवल के बीच में अपने को कुछ नहीं किया, हमने सिर्फ लास्ट वीक का वीवैप का लेवल निकालने के लिए निकाला और फिर सिर्फ देखते गए कि मार्केट में डेल्टा और बाइंग आ रही है क्या, टू सपोर्ट द हाइपोथेसिस कि अगर इसमें एंटर किया तो ये ऑपोजिट एटलीस्ट पर्पल लाइन जाना चाहिए और उसके बाद ये जाना चाहिए, और ये एक नोड का ये था। तो यहाँ भी परफेक्टली रिजेक्शन आया है यहाँ से, जो ब्रेक हो जाएगा। ये अभी रेंज बाउंड ऊपर की तरफ हो रहा है। जी सर, हो जाएगा हो जाएगा। हाँ, क्योंकि वीवैप इज मच मोर स्ट्रॉन्गर देन दिस बिग सपोर्ट लिया है सर प्रीवियस डे वीवेप का। राइट। बाइंग है अच्छी, मूव है अच्छा, डेल्टा जी। अच्छे हैं। और जैसे बैंक निफ्टी सपोर्ट करेगा अप मूव के लिए, निफ्टी तो तगड़ा ऊपर चले जाएगा। बिल्कुल सर। देखते हैं निफ्टी में क्या हो रहा है। अच्छा, निफ्टी में अच्छा खासा बाइंग और सेलिंग हुआ है। तो सर अभी आप ये इक्विटी वाला ऑप्शन ही यूज कर रहे हो ना, रेगुलर ऑप्शन डेस्क नहीं कर रहे हो ना? नहीं, ये तो नॉर्मल इक्विटी वाला ऑप्शन हम यूज कर। ठीक है, इसी में सब कुछ मिल जाता है अभी। यस, पूरा सेटअप इसमें है। मैं स्लोली क्यों लेके जा रहा हूँ सबको सिंगल व्यू से, क्योंकि स्टार्ट में ज्यादा मुझे किसी को कंफ्यूज नहीं करना। इवेंचुअली मैं एक ऐसा लेआउट दूंगा सबको जो मैं यूज करता हूँ, ये विंडो वाला, जहां मैं नीचे सीवीडी मॉनिटर करता हूँ और फिर यहाँ 5 मिनट 15 मिनट एक सिंगल इसके लिए बैंक निफ्टी के लिए, ठीक है। ऐसे दो विंडोज ओपन रखने हैं आपको, 5 मिनट 15 मिनट 1 मिनट पे एंट्री लेनी है और नीचे 5 मिनट और 15 मिनट खोल के रखना है। हाँ, 5 मिनट 15 मिनट खोल के रखना चाहिए। और फिर नीचे डेल्टा मॉनिटर करता हूं मैं, और उसके बाद जब सिग्नल बन गए एंट्री के, तो एंट्री के लिए जब मैं देखता हूँ तब मैं 1 मिनट पे चले जाता हूँ कि 1 मिनट की कैंडल पे मैं अगर लॉन्ग जाना है तो मैं पुल बैक 1 मिनट लॉन्ग टाइम फ्रेम पे जाऊंगा, मतलब रेड कैंडल पे। और अगर शॉर्ट जाना है तो पुल बैक टू माय लेवल ऑन द अप साइड ग्रीन कैंडल पे। और वो वीक पुल बैक होना चाहिए, मतलब ऐसा स्ट्रॉन्ग पुल बैक नहीं चाहिए कि समझ जाएगा आपको, स्लो एंड स्टेडीली राइट हाँ नाउ। बिल्कुल बिल्कुल। Okay, just I'll be back. I'll probably have some. Oh, it's already 12. I need to have my breakfast and I'll be back. But sir, today I have joined first time. Please share your Telegram channel or other group channel to learn more from. For me, I don't. This is Go Chatting Traders Telegram group. Please join it. I don't run any service, so if anybody is asking money under my name, please do not give anybody money. Use that money to invest in your own education by trading in the markets. Okay. Kartike Shakya, thanks, sir. Trizzy, given that it was a trending day today, does option buying work in a ranging day market? Depends on the range here, Trizzy. But if you really want to make risk-free money, a little bit less risky play, if it's a range-bound market, always go for selling. But yes, we do make regular. In fact, the first day of this live session, it was a totally range bound day, and we took range to range trades and we moved around 100 to 100 points. So yes, this does work in a range bound market too. In fact, it works very good. Once you identify it's a range bound market, then it's only a matter of fading the extremes. So fading the extremes करके एक concept है, आप Google कर लेना. Monesh, did you take any trade today, Monesh, on these convictions? हाँ सर, लिया था। अच्छा है, प्रॉफिट में हो? हाँ सर, फाइनली फाइनली प्रॉफिट में हो। 2000 कुछ ऐसे हुआ है। जी जी जी। कहाँ एंट्री ली आपने, किस टाइम पे? जस्ट वो वीवैप के नजदीक वही लिया था, फर्स्ट ट्रेड लिया था जब क्रॉस किया था ना नीचे से। अच्छा, सो एक ही लॉट के साथ कर रहे हो? जी जी, बाद में मुझे कुछ क्लिनिक में पेशेंट थे, नहीं लिया, बाद में एक ही लिया था, प्रॉफिट में बंद कर दिया। अच्छा, प्रॉफिट में बंद कर लिया?
जी जी सर। हाँ बेस्ट है, गुड गुड वर्क नॉलेज फाइनली। ओके, नाउ यू अंडरस्टैंड। ओके ग्रेट। आई थिंक ये मूव आएगा हाँ। इधर तक 39 to 40 50 तक। फॉर नाउ लेट्स मॉनिटर क्या हो रहा है एंड देन आई विल कॉल दिस अ डे। ओके गाइस, आई थिंक ज्यादा इसमें बातचीत करके वीडियोस बड़े हो जाते हैं, तो वो मैं छोटे रखना चाहता हूँ। सर वन मोर थिंग, डेल्टा बार के ये बड़े बार है ना, ये क्या डिनोट करता है सर? ये एक बार फिर से क्वेश्चन पूछोगे आप? डेल्टा बार में बड़े ग्रीन बार रेड बार है ना, इसमें छोटे तो डेल्टा डिनोट करता है, ये बड़े बीच में आता है ना, ये क्या डिनोट करता है सर? ये वाला क्या? हाँ सर, हाँ सर। जब प्राइस ऑपोजिट वे में मूव होता है और डेल्टा का कैंडल ग्रीन है, डेल्टा का कैंडल ग्रीन कब होगा? जब मार्केट बाय ऑर्डर्स आर मोर देन मार्केट सेल ऑर्डर्स। ओके, दीज आर ऑल मार्केट ऑर्डर्स डेल्टा के। जब मार्केट बाय ऑर्डर्स इतने एक्स्ट्रा है मार्केट सेल ऑर्डर से, फिर प्राइस क्यों उल्टा मूव कर रही है? तो कोई तो लिमिट सेलर इधर बैठा है, इसलिए मूव हो रहा है। तो तब जब भी प्राइस कैंडल रेड हो और डेल्टा कैंडल ग्रीन हो, तो वो उसको कलर कोडिंग ग्रीन किया जाएगा टू सिग्निफाई रिवर्सल और एब्जॉर्प्शन और ट्रेंड डिसकंटिन्यूएशन और वॉट एवर यू वांट टू कॉल इट, बट एट द एंड ऑफ द डे इट सिग्निफाइज दैट भले ही मार्केट में बाइंग एक्स्ट्रा हो रही है, बट यहाँ कोई बैठा हुआ, दैट डजंट मीन कि यहाँ से रिवर्सल आया। ये हुआ क्योंकि एक लेवल था यहाँ 39,118 का, जो ये नोड का हाई था। ठीक है, मूव इज कमिंग। आई होप अगर एंट्री लेनी होती तो जो कोई पूछ रहा था पहले, आई गेस ट्रिजी पूछ रहा था एंट्री एग्जिट, ये देखो ये पुल बैक था थर्ड डिविएशन तक, पर्पल लाइन पे अपना प्रॉपर बाउंस है, यहाँ से ये एंट्री बन रहा है। तो आपको एंट्री एग्जिट एंट्री एग्जिट एंट्री एग्जिट एंट्री एग्जिट करते जाना है, तो स्कैल्पिंग कर सकते हो आप इस पे, बट स्कैल्पिंग इज नॉट सस्टेनेबल इन माय ओपिनियन इन द लॉन्ग रन, इसलिए मैं किसी को रेकमेंड नहीं करता। फॉर नाउ आई बिलीव ये थोड़ा सा और अप मूव देके यहाँ कंसोलिडेट होके फिर ट्राई करेगा टुवर्ड्स द अपसाइड। सर मैंने अभी स्कैल्पिंग ली सर निफ्टी में 11 पॉइंट का। 1120 का स्कैल्पिंग? नहीं 11 पॉइंट 11 पॉइंट का। ओके, इस पे इस पुल बैक पे लिया क्या? जी सर, प्रीवियस डे विवेप सर, ये पर्पल लाइन है ना? राइट, जस्ट ओपन निफ्टी 1 सेकंड, ये वाली पे लिया क्या? जी सर, पर्पल लाइन पे। जी सर। अच्छा, पर्पल लाइन तो नहीं है यहाँ का। एक मिनट सर, प्रीवियस डे, एक मिनट सर, निफ्टी की बात, या एक मिनट, ये बैंक निफ्टी है, मैं बैंक निफ्टी की बात कर रहा हूँ सर, मैं बैंक निफ्टी। अच्छा, ऑलराइट ग्रेट। ये पर्पल लाइन पे ना? जी सर। सर लोड ज्यादा थे इसलिए मैंने एग्जिट कर लिया। बेस्ट मतलब 11 पॉइंट और कितने लॉट थे तेरे? 15। ओ जी सर। 4,000 फिर से निकाला बेसिकली तूने। जी सर। हाँ, बहुत हेल्प। सॉरी कट हुआ आवाज, कुछ क्या बोल रहे हो? किसमें हेल्प चाहिए? आपसे बहुत हेल्प होती है सर। ओके, अरे नो वरीज, ग्रेट, आई कैन अंडरस्टैंड। ऑप्शन बायर इज अ रिस्की बिजनेस, बट जब मार्केट को रीड करने आती है तब बहुत मजा आता है ऑप्शन बाइंग में भी। जी सर। आई वुड स्टिल सजेस्ट कि ऐसे कम लॉट्स के साथ ऑप्शन बाइंग से क्या करो, आपका पॉट बनाओ 2 लाख का, जी फिर सर। उसके बाद 1 लॉट ट्रेडिंग इन ऑप्शन सेलिंग चालू करो, क्योंकि इवेंचुअली मूव तुम्हें होना है सेलिंग पे, जी ऑप्शन सर। बाइंग में ज्यादा दिन नहीं रहने का है। अब छोटे 40-50,000 रुपीज के कैपिटल पे ऑप्शन बाइंग चालू करके आपका 2-3 लाख का पॉट बनाओ इन 6 months टाइम, इट इज फाइन। फिर उसमें से आप 1 लॉट सेलिंग करो बैंक निफ्टी का। जनवरी टारगेट है सर सेलिंग। राइट,
तो मेक श्योर कि सेलिंग में ही जाओ, एंड ऑफ द डे सेलिंग में ही मतलब दो देखो, अगर थोड़ा एक दो लॉट से बाइंग करो जी सस्ते सर। में, आउट ऑफ मनी जी चाहिए तो, जी और फिर एक जो अच्छा खासा चंक ऑफ मनी है वो इन द मनी, ऑन द मनी ले लो, तो उसमें हेजिंग टाइप सर। हाँ, बट डायरेक्शन एक ही है ना, तो हेजिंग नहीं कर रहे हो इनफैक्ट। जहाँ ऑप्शन बाइंग करने से, वैसे यहाँ के नीचे अभी तुम्हें सेल कर देने थे सारे, जी सर। तो जी 100 रुपए रहेंगे आपके पास, 100 रुपीज का कैपिटल रहेगा, या सर। 10,000 रुपीज, 10,000 रुपीज टोटल रहेंगे, तो तुम्हें जी 1-2% के साथ ट्रेडिंग करनी है, मतलब समझो जी 100 रुपीज के साथ फॉर एग्जाम्पल। जी जी 100 रुपीज में 80 रुपीज से तुम्हें बेचना है नीचे का, और 20 रुपीज में जो मिल रहा है आउट ऑफ पता मनी, चलेगा। हाँ वो खरीदना। ओके सर। तो आप लेवरेज भी ले सकते हो लेस रिस्क के साथ, और फिर जब, अरे वापिस क्या था रे इसका टाइम लेवल, टाइम डीके का भी सर प्रॉफिटेबल में भी। इधर था ये शायद 39 130 था ना इसका। ये बाद में लेवल्स काम आते हैं लोगों को, मेरी वजह से हिट होते हैं एक बार में। एक सेकंड रुक जाओ सब लोग। हाँ ये ब्लू बराबर है अभी, ये नोड है ना, हाँ ठीक है। ऑलराइट, जिसने यहाँ एंट्री ले ली है उसने तो अच्छा खासा मूव पकड़ लिया आज। ऑलराइट बॉयज, क्या क्वेश्चन है, एनी गुड रिसोर्सेज फॉर लर्निंग बेसिक्स ऑफ ऑप्शंस ट्रेडिंग? बहुत है यूट्यूब पे ट्रेजी, देयर आर लॉट ऑफ रिसोर्सेज ऑन यूट्यूब, गुड रिसोर्सेज आई I'm not sure, but always look out for short 5-minute videos with playlists. We are also building a playlist of option, the fundamentals of option buying and selling. So eventually that will be there. But before that, you can check out. देखो ऑप्शन प्लेटफॉर्म्स बहुत सारे हैं, यूट्यूब पे सीख लो। ये वीडियो का रिकॉर्डिंग मैंने लेट चालू किया, बट ये मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा। टाइम पे चालू कर दिया मैंने, ऑनेस्टली मैं भूल गया था सुबह, बट अच्छा। सो ट्रेड एनालिसिस एंड देन विल स्टॉप, ओके? सर 1 मिनट सर। हाँ पूछो। 21,000 हो गया सर आज का। वाह, सो यू मेड 21,000 ऑन अ कैपिटल ऑफ? सर स्कैल्पिंग के लिए तो अलग लगा था सर, बाकी इसमें सर 30,000। 30,000 पे 12,000 तूने कमाया शायद, 12 to 13। नो सर, 40,300। ओके, 40,300 का कैपिटल था या नहीं सर, 30,000 का कैपिटल था ओके, और 40,200 मैंने इससे निकाला सर। ग्रेट। ऑलमोस्ट 50% रिटर्न हो गया सर। नहीं 100% हो गया ना, तो 30,000 पे 40,000 निकल रहा है, थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ। नहीं सर, 30,000 का मेरा कैपिटल था सर, ओके, और 14,000 मैंने निकाला। 30 ओ 14 बोल रहा है तू, ओके ओके, मुझे 40 सुना है। 14 निकाला सर, और 30,000 या कैपिटल। परफेक्ट ना, और क्या चाहिए यार, तू अभी दिस इज 50% ऑन कैपिटल फॉर अ 30,000 capital size for an option buyer is dreams. This is what dreams are made up of. So follow this. ये परफेक्टली जो चाहिए वो कर रहा था आज अपने लिए, और अच्छा खासा रिटर्न दे दिया है। People who are watching this or will watch this later on do understand that there is a high risk also involved in this setup, but we have minimized the risk to a level where कि एक दो failed breakouts हो रहे हैं अपने, बट री एंट्री में तो ये फेल था ब्रेकआउट,
यहाँ एग्जिट करने लगा दिया सबको मैंने, बाउंस बैक पे कोई तो पूछ रहा था, यहाँ ये मूव आया, यहाँ एग्जिट करने लगा दिया मैं पूछ रहा था। एंड देन अच्छा, और फिर यहाँ वापस एंट्री हो रहे थे अपने सारे, सो ये परफेक्ट एंट्री हो गई। The move was simple. We didn't look at other pockets. There was a main value area, last week's value area, which we removed via VWAP. We marked the levels with yellow, right? And then we waited for a breakout. We had a breakout. We did a pullback proper, and on the pullback and also on the DVA we held. So इस level पे भी hold हो गया, DVA के above trending है market, choppy नहीं है, so up move sustain होने वाला है, ये first signal इधर मिल गया. Second, that we went rotational inside this value area was hold of this. Deltas actually flat हो गए थे after giving a good breakout on this. When there was a down move, there were the sell deltas were not as strong as the buy deltas, right? Although we got a full rotation towards downside, signifying that there are no limit buyers here yet. But on the second rotation, obviously, we started seeing an up move and then buying, even if there was a lot of buying that happened. Then the second biggest signal was this candle, which was around, उस पे delta बहुत बड़ा था. There was a big red candle that happened, but the price didn't move. I think there was let's see how many, 500 to 700 contracts हो गए थे. Yeah, 600 contracts here, and the price didn't move at all. So that was a second confirmation of the up move, and then we just started. I guess we started recording around this time. Once I realized we were not recording, but then we got a up move pretty fast here, and क्या हुआ है इधर, मिल गया आज का पूरा, जी सर, हो गया आज का ट्रेड परफेक्टली. We बिल्कुल entered सर. here, wherever a B plus A plus, sorry, A plus was this was B minus, B plus. We got a pretty good move in the money के लिए. अगर आप 3 lot trading करते, इधर एक exit, इधर एक exit और इधर एक exit, ये तो actually अभी yeah, it's going for that blue line which we have removed in the morning. सॉरी गाइस, ये देखो, ये नोड में घुस गया है, अच्छा खासा मूव मिल रहा है बेसिकली, सस्टेन होते जाएगा. निफ्टी में कौन है अभी भी? Anybody still in Nifty? We have reached the VWAP of last week. हाँ, क्या बोल रहे हो? सिर्फ वॉच कर रहे हैं निकलने के बाद, बहुत ही हाई चल रहा है वो. हाँ, बट एक्चुअली यहाँ निकलना नहीं चाहिए था ज्यादा. ठीक है, निकाल दिया, सही है. डाउन मूव पे एंट्री थी, क्योंकि मैंने जैसे बोला कि बैंक निफ्टी तभी वीक था. जैसे बैंक निफ्टी स्ट्रांग हो गया तो इसका अप मूव बाकी था टोटली, इधर कुछ रेजिस्टेंस था ही नहीं इसको. तो जैसे ही बैंक निफ्टी देने लगा अप मूव, एक लोट है सर निफ्टी में. बेस्ट. आई थिंक द मूव इज डन गाइस. जो भी प्रॉफिट बुक करना कर लो इधर, भले और 10,000 पॉइंट ऊपर जाए, कोई भी क्या फर्क पड़ता है, आपके पॉकेट में रख लो. मुझे लगता है कि वी विल बी रोटेशनल नाउ आफ्टर दिस समवेयर. ये एक तरफा मूव नहीं जाएगा. ये दिस इज नॉट अ डे फॉर अ सस्टेन्ड अप मूव कि इतना दिया, बहुत काफी दिया है हमें. राइट सर. ये अभी अगर सेलिंग यहाँ से नहीं आती है तो उल्टा मैं सरप्राइज हो जाऊंगा कि ओके, व्हाट्स हैपनिंग वियर्ड इन द मार्केट, बिकॉज दिस इज नॉट आवर रीड इन द मार्केट. यहाँ से रिवर्सल आना है, इसमें रेंज बाउंड हो जाना है. इसको जितने देर VWAP के ऊपर होल्ड करेगा इस पर्पल लाइन पे, उतना आप बुलिश जा सकते हो फॉर द नेक्स्ट वीक. ऑलराइट, ओके, आई विल जस्ट क्विकली go over the trade once more. The entry signals have two criteria. Price has to be above daily value area, so sorry, developing value area, right? And price also needs to break into a value area or break out of a value area. Here we were breaking into a big value area of last week, which was basically between these two yellow lines at 3924 from 38
830 to 39 to 50, right? Almost like 830 850 पकड़ लो 150 और ऊपर 200 300 पॉइंट का मूव था ये. So initially we had a breakout here. We took a long, it failed. We exited at some loss, 10-point loss. I had a bigger loss because I held it till here. When we broke into the DVA, I exited. Then we held very well on a 5-minute candle during this downturn. As soon as we broke the VWAP, the first signal was created for the criteria. When we broke the developing value area high, the second signal was created, but there was very low reward on the upside and high risk. So low risk, the risk reward was not aligning well. So this was not a good entry, but it is still a B plus setup, in my opinion. As soon as we broke with good deltas, this, and we got this move, these 3 candles, this was confirmed. Now the only second criteria we want is now 3 criteria है. एक तो price developing value area के ऊपर है. Also we have broken into a value area, so both need to be in place. Then all we need is a pullback perfectly on our levels. There was a pullback, and what happened? The pullback बहुत वीक डेल्टास थे, बट पुल बैक अच्छा था, माने कि यहाँ कोई लिमिट बायर नहीं था. और जैसे ही ये लेवल होल्ड कर दिया और बायर्स स्टेप इन हो गए, they took the price up lower, higher high, higher lows were being created through and throughout. All of these levels were broken. Essentially आप यहाँ भी एंट्री ले सकते हो, which is like a second confirmation of this level, yellow level. All right, ये first pullback था, second pullback था, जहां बहुत सेलिंग आई मार्केट में. ऑलमोस्ट 700 कॉन्ट्रैक्ट्स की सेलिंग आई 1103 के कैंडल पे, बट प्राइस डिडंट मूव, एंड वी एक्चुअली स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट द मूव फ्रॉम हियर एसेंशियली, कि इतनी इसके बाद मूव फास्ट आने वाला है. सो अपने T1s थे प्रीवियस वीक्स वैल्यू VWAP, एंड देन दिस ब्लू लाइन वाज अ हाई वॉल्यूम नोड. ये T2 था, ये T3 था अपना, और ये T4 ऑलमोस्ट आ गया है. Yes, all right guys, I think Nifty. Also, could you please show an example in Go charting of live market orders that are being executed? These are live market orders that are being executed, and then there is something called as books. So these are live market orders being executed, and then there is a DOM if you want to look at, the entire volume that has been created on all levels. So every 5 rupees पे कितना volume generate हुआ है, और ये book, if you connect it to a broker, then you get best 20 top 20 bids and offers here. Orders, you can select a filter here for, and everything is in everything is not in lot size. Okay, so you have to multiply by 1000 add करके रख लो, तो यहाँ filter बन जाएगा. Usually what I do on the DOM, on the trade side or DOM side or the order side, is put in a filter and look at it. But I don't personally use this tool continuously because there is a lot of things to monitor. If I want to use it, there is a certain setup I use it with for scalping. But we are not talking about scalping right now, so I'm not. Thank you so much, sir. What a day. 21,300 profit done. Thank you so much, sir, for corporate. मेरा 10 दिन का लॉस अब प्रॉफिट में कन्वर्ट हो गया है, सर, within 6 day. अरे सर, thank you for so much good words. Thanks. Basically, it's thank you for supporting.
निफ्टी भी ब्लास्ट हो गया है। आई थिंक दोनों को अपने इस पे मिल गए अराउंड 200-300 पॉइंट के मूव्स मिल गए, अपना दिन का ये खत्म हो गया। बैंक निफ्टी से गैप फिल हो गया सर। या अच्छा, बैंक निफ्टी का गैप फिल हो गया, कौन सा गैप फिल? जी सर, 30 पॉइंट अप हो गया। गैप था पीछे, सो ये तो फिल होना ही था। नहीं, ये गैप तो इधर फिल हो गया था। पहले ही फिर हो चुका है वो। हाँ, ये देखना, ये हो गया। जी सर। बट रिगार्डलेस, हमें मूव कहाँ मिली एंट्री? यहाँ 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 1 2 3, और मूव आप यहाँ भी एग्जिट कर लो, इट्स ऑल राइट। यहाँ एग्जिट कर लो, वीवैप पे एग्जिट कर लो, इस पे एग्जिट कर लो, यू आर स्टिल इन प्रॉफिट। एंड आई थिंक डूइंग एनीथिंग, देखो तुम्हें प्रैक्टिस सिर्फ डायरेक्शन की करनी है इनिशियली। आप कॉन्ट्रैक्ट साइज एक दिन के बाद मतलब आफ्टर 1 ईयर ऑफ प्रैक्टिस यू कैन गेट अप वन डे एंड से ओ मैं आज 1 लॉट से नहीं, मैं 25 लॉट से करूंगा या 100 लॉट से करूंगा। सो वो तुम्हारा एक बार एक्यूरेसी बढ़ जाता है आपका ट्रेड लेने में डायरेक्शनल वाइज, तो फिर इट इज ओनली अ मैटर ऑफ इंक्रीजिंग लॉट साइज। और उसमें भी अगर आप सेलिंग करते हो तो यार इस लेवल पे अगर सेलिंग करते हो और मूव इतना फास्ट मिल जाता है तो प्रीमियम्स इमीडिएटली घटते, तभी आप कैप्चर कर सकते हो बहुत सारा, और टाइम आपके साथ है तो व्हाई नॉट, मतलब आप स्विंग्स में बैठ सकते हो। बेस्ट थिंग अबाउट सेलिंग इज नाउ दैट यू सोल्ड एवरीथिंग बिलो वैल्यू एरिया लो ऑफ प्रीवियस वीक, यू कैन इजीली प्ले एक्सपायरी तक। जी सर। मतलब ये मूव देने के बाद आप एक कॉन्ट्रैक्ट रख सकते हो एक्सपायरी के लिए कि पूरा जीरो होने तक। सो उस स्विंग्स वर्कआउट बेस्ट एसेंशियली। कॉल साइड में सर। हाँ, क्या कॉल साइड क्या? सर अभी होल्ड करके रखे या फिर सर अगर चांस ले सकते हैं तो आउट दो मनी? नहीं, कुछ मत करो अभी, दुकान बंद करो और घर जाओ। इफ यू Okay. आई हैव ऑलरेडी टेकन इट, एंड इफ यू आर अ स्विंग प्लेयर एंड इफ यू आर अ सेलर, देन एंड देन ओनली आई एम सेइंग। अगर आप सेलिंग करते आए हो इतने दिन और आप स्विंग सेलर हो तो फिर होल्ड कर सकते हो एक्सपायरी तक, क्योंकि अभी आपको ऑलरेडी प्रॉफिट मिल गया है उस पर, जी डीके सर। इतना मिल गया है कि आप इस लेवल तक आना मुश्किल है वापस। तो रोटेशन होके आज तो नहीं आएगा, मतलब ऐसे बोल रहा हूँ। और कल मार्केट वापस खुलने के बाद वापस डीके प्राइस इन हो जाएगा। सो बाय दैट टाइम तुम्हें इतना डीके मिल जाता है, डायरेक्शन तो राइट आ गया, डीके मिल जाता है कि यू आर ऑलरेडी नो प्रॉफिट नो लॉस। अगर इतना पूरा अगर पीछे आ जाता है मार्केट, एंट्री के इधर आ जाता है आपके, तभी भी आपका मतलब आपको इनफैक्ट एंट्री तक नहीं, आपको इधर तक मिल जाएगा इंट्राडे सपोज जो ये ग्रीन लाइन मिली है, तो एंट्री आपकी ऊपर भी रहेगी। पूरा डाउन मूव आने के बाद भी आप नो प्रॉफिट नो लॉस पे रहोगे जस्ट बिकॉज ऑफ डीके। सो इतना अगर डाउन साइड प्रोटेक्शन मिल रहा है आपको तो यू वुड वांट टू प्ले द एंटायर डीके, राइट? मतलब एक्सपायरी। सो ये तो हो गया। आई होप एवरीवन अंडरस्टूड ये कि तुम्हें ट्रेंड यू आर imbalanced on the upside because price was outside balance, which is the gray area, which is the VWAP first deviation, and also it entered rotational in last week's value area. So rotational मतलब यहाँ से अभी इधर जाना है इसको, और इसके अबाव है ग्रे एरिया के, तो ट्रेंडिंग मार्केट भी है। और फिर डेल्टास ने सपोर्ट किया ही किया हमें, और we got a really great people made around what somebody made how much did you make the guy who was with the 30,000 yeah, I don't remember your name, sorry. Let's see. Not location. पता नहीं, जो भी He made 14,000 on a capital of 30. ओके, 14 बनाया था एम उसने। से कुछ नाम था सर उनका। राइट राइट राइट, बाद में इंक्रीज भी हुआ। चलो ठीक है, प्रॉफिट मत देखो बाकी का। सर निफ्टी में रिवर्सल आ सकता है कि ओआई के पास इम्बैलेंस हो रहा है सेल साइड?
ट्रेंडिंग मार्केट्स है, रिवर्सल कब पूछोगे तब आप देखते चलो फिलहाल तो नहीं ये वीवॉप के यहाँ अबाव होल्ड कर रहा है, रिवर्सल आना है तो यहाँ से सेलिंग आनी है पूरी। ये रिवर्सल नहीं है, ये रिवर्सल हो सकता है ऐसा अभी जो आ रहा है ना सेलिंग। वीवॉप के नीचे क्लोज होने दो और फिर उसका पुल बैक भी क्लोज होने दो 5 मिनट पे, फिर हम बोल सकते हैं कि एक रिवर्सल टुवर्ड्स टिल द सेकंड डिविएशन आ सकता है। बट मूव तो अपसाइड ही दिख रहा है, अनलेस सेलिंग इतनी आ जाए अभी मार्केट में कि नहीं सिंपल है, ये इधर तक टच होगा थोड़ा सा। अगर रिवर्सल ही देखना है तो हायर हाई हायर लोज का स्ट्रक्चर ब्रेक होता है किसी लेवल के पास तो वो सिंपल हो जाता है। Alright guys, had a really good time with you guys. Hope you all learned something new today other than also making profits, right? We'll see you in the next session. Please exit yourself.